Hello, Mr. Chintan Trivedi. Hello, Mr. Chintan Trivedi. Am I Yes, audible to you? yes, I can listen to you. Okay. Okay. We'll start the session after the 5 to 10 minutes. We are waiting for participants to join. Okay, sir? Okay, fine. My audio is clear, Yes, sir. Crystal clear. and I'm also starting my videos. Okay, sir. Are you going to present any presentation? Yes, I have my PPT. Okay, so you can directly share from your side, sir. Fine. I'm just doing that. Okay. Mhm. Sir, are you familiar with the system, Zoom application? Yes, yes. I am very habitual with the Zoom application. Okay, sir. So, but I just need a if you have there any discrepancy, any disturbance, please let me know. Sure, sir. Sure, definitely. Okay. Yeah. Sir, So, when you are going to share your presentation, mhm. please shut the camera videos. I have two videos, but the No, thing no, is no, that sir. Live video of yours. live video. Uh-huh. What it means? I'm saying right now to you. Please, Mhm. there are two icons. One is for sound and another one is for video. One is for sound. Means voice. Another one is for video. Start video, stop video. Can you see Okay, on at the time of presentation? Please shut it off. okay. Maybe sometimes in my laptop uh, there is one error. It is What is it saying, sir? I'm saying that sometimes in my laptop No, no, no. it is automatically going to shut down. Oh, There is some problem. Can I share to you my PPT? Can you yes, share sir. it from your Okay, side? It okay. is good for me. It is more comfortable for me. Yes, sir. So So, I am can you send us a mail or you can directly WhatsApp? okay. I can WhatsApp to you. Okay. PPT I can WhatsApp. When Rana sir has called you in the morning, Huh. you can send your presentation on his number. Sure. Just give me 2 minutes. I'm just sending my PPTs to that number, right? Okay, sure, sir. Take your time. I got the Zoom link on that number. Yes, sir. The same number. Same number I'm sending my PPTs, and video is little bit large, so I'm trying to do that to share. Is there any Telegram number? Yes, sir. 96249 Just a second. 96249. 30684. 96249 Mm-hmm. 30684. 30684. Yes, sir. Okay. Fine. I'm just signing off and sending it very fast. Okay, sir. Okay. Thank you so much. Request to all the participants that stay with us. Sir will join within a few minutes.
It's a request to all the participants, please stay with us. Due to some issue, there is delay in the second session. We'll start as soon as possible. Thank you.
Hello. Are you there, Mr. Trivedi? Yes, hello. You are now host, and let's start the session. Okay, okay. So now I'm going to start my session. Hello. Hello. Let me give you a informal introduction. After Please, that, you will please. start. Yes, please. Okay. Sorry for the delay to all the participants. We are back in action. Good afternoon once again, and welcome to all in the second session of the day, which is also the last session of the program. We will commence the session of the day, which is on the topic naturopath, yoga, and mental health, which will be delivered by Mr. Chintan Trivedi sir, which will help to relieve the stress of the mind and the body of the participants. On behalf of Tapi Diploma Engineering College, Sandeep Patil welcomes Mr. Chintan Trivedi in 5 days of online FDP sponsored by AICT Atal, having titled Advancement in Material Processing Technologies. Before starting the session, I would like to give brief introduction about Mr. Chintan. Mr. Chintan Trivedi is working as naturopath, yoga coach, acupressure therapist, massage master, government and corporate trainer, motivational speaker, personality developer, and mentor. He is also a consultant in natural and alternative medicine treatments, therapeutic yoga, psychometric counseling, therapeutic massage, yoga trainer, corporate and government training, and organizing naturopathy and yoga shibir. He has 17 years of work experience. We are very grateful to have such a decorated personality between us. Now I request Mr. Chintan Trivedi to start the session. Thank you so much for this kind of humble, wonderful introduction to Sandeep Patil sir. Before I'm going to start my session, I humble and heartily request to all participants that everybody is joined from each and every part of our great India country. So I welcome to everyone to this very healthy session. After this all, you have continuously listening the technical session. So after that, in this last session, I will be try to give you the mental rest session or healthy session. I promise you to everyone that it will be going to your best time of your life. It will be my effort. So I lastly request to everyone, I will start my session by doing prayers. So for that, I request everyone, those who are sitting in front of your mobile, please switch on your videos if you have proper connectivity network in your sitting area. So kindly do that so that I can see you clearly and I can watch you properly. Thank you so much for my request. So before I start my session, I request everyone again, then please close your eyes, sit very calmly, take breathe out very easily and smoothly. We will do the Omkar therapy, we can say rather. So Omkar Pranav, we will do 3 times. I hope that everyone is knowing this basic Omkar things. So for that, sit properly, close your eyes and do with myself
together. We all do together. Please take a long trip. Yeah. Please take a long depth. We will do all together second time. Please again take as long depth. Third and last time, we will do all very well properly with your very long and soundly voice. Please take a long breath and start. Now everybody will please sing a prayer with me. Om Sahana Bhavatu. Om Sahana Bhavatu. Sahano Bhunattu. Sahaviryam Karvavahe. Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you so much, everyone, for doing this wonderful prayer. I hope everybody have get peace of mind and mental relaxation by this Omkar and prayer. So, as per my topic, I will share my whole experience about yoga and naturopathy. As we all are aware in this pandemic situation that yoga and naturopathy is going to be our most important part of our life to be live healthy and happy, because we all are have everybody's have personal disease, personal problem, personal mental health issue. We all are knows that in this kind of situation, if we want to live healthy, happy life, we have to be proper, healthy and happy. But nowadays, we are not in a proper way to be live healthy life. So in this my session, I will share that how can we live healthy and happy life by naturopathy and yoga. So I will start my topic by the subject of yoga. We should know basic thing
about yoga. Now we are saying yoga, not yoga, as yoga is our Indian ancient science that created, established by our Rishi Munis, by our Sant. And nowadays, in this situation, in this present era, we are not following, we are not implementing in our life that yoga is very, very important part. Rather, it is sadly, I have to say that apart from India, the foreign countries like USA, UK, Australia, Europe, and so many more countries are following our yoga very well and properly. So I heartily request to everyone that we must follow our this culture values of yoga. So uh, I want to say that what is meaning of basic yoga. I will not say about this more history in technical language. I will try to say in very, very common ways that everybody can understand properly that योग क्या है, किसे हम योग कहेंगे. तो बेसिकली अगर हमें योग को समझना है तो योग है, योग को कहना है तो योग मतलब जुड़ना, किसी भी वस्तु के साथ जुड़ना, किसी भी विषय के साथ जुड़ना, किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ना, या फिर अगर मैं सही तरीके से मैं कहूं तो शरीर और मन के साथ जुड़ना, आत्मा के साथ और परमात्मा के साथ जुड़ना. तो ये जो जुड़ने का प्रयास है, जिसको मिलन कहते हैं, संयोग कहते हैं, वही बेसिकली योग है. योग यानी कि जो आजकल हम सभी लोग कर रहे हैं, सिर्फ आसन यानी कि योगासन, प्राणायाम, ध्यान या कुछ व्यायाम, यही सिर्फ बेसिकली योग नहीं है. योग का व्यवहारू हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर how can we improve, how can we follow, how can we make a part of our life, that is to build a healthy relation, to build a good relation between each and every person, each and every aspect of our life. यानी कि हमारे जीवन के सभी हिस्सों को सही तरीके से जोड़ना, उसके साथ अटैच्ड होना, उसको समझना, यही बेसिकली योग कहा जाता है, जो मुझे समझ में आया है. तो इस योग को अब हम किस प्रकार, हमारी जो अभी फास्ट लाइफ हो चुकी है, जो हमारी लाइफ जो है इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फास्ट लाइफ. वी डोंट हैव टाइम टू थिंक अवर सेल्फ. हमको खुद को समझने के लिए हमारे पास समय नहीं है, ना हमारे परिवार को समझने के लिए समय है, ना परिवार को साथ देने के लिए समय है. तो ये सब चीजें जो फास्ट लाइफ बन रही है, इसी सिचुएशन में हम लोग क्या करें कि हमारा जीने का हिस्सा जो योग होना चाहिए, जो आजकल नहीं है, उसको किस प्रकार हम लोग हमारे जीवन में योग को हिस्सा बनाएं. तो सिंपली आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं पूरे पूरे भारत वर्ष में, सभी राज्यों से, सभी डॉक्टरेट, सभी मैकेनिकल हेड डिपार्टमेंट के लेक्चरर्स, एचओडीज जो भी जुड़े हुए हैं, सभी ने शायद कुछ प्रयास किया होगा. तो मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि योग जो है अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए. सबसे पहली बात मैं कह रहा हूँ, हमारी बॉडी की जो फिटनेस है, या किसी का बॉडी जो है वो हैवी वेट है, कोई बहुत दुबला है, कोई किसी को कुछ न कुछ बीमारी है. जैसे आजकल की जो कॉमन डिसीज की मैं अगर बात करूं
तो डायबिटीज है या अस्थमा है या आर्थराइटिस है या फिर ब्लड प्रेशर है, कोई भी बीमारी से हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग घिरे हुए हैं। तो इसी सब चीज को ध्यान में रखते हुए हमें हमारा योग का अभ्यास किसी अच्छे एक्सपीरियंस एक्सपर्ट योग टीचर के साथ के संपर्क में आके शुरू करना चाहिए। तो योग का मतलब सिर्फ आसन और प्राणायाम जो हम लोग करते हैं या हमने देखा है वही सिर्फ नहीं है, हमें उसकी सूक्ष्म क्रियाओं यानी कि कुछ हल्के व्यायाम, कुछ आसन व्यायाम से करके शुरुआत करनी चाहिए। तो हमारे जीवन में सबसे पहले हमारी जो आदत है, हमारी जो डेली लाइफस्टाइल है, उसी लाइफस्टाइल को सही करने के लिए योग का होना बहुत जरूरी है। तो हमारे जीवन में हम जहाँ रह रहे हैं यानी कि हमारा परिवार, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे सन डॉटर, हमारे रिश्तेदार, ये सभी के साथ एक अच्छे व्यवहार रखना, इसको ही व्यवहारु योग कहा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य। ये भी एक अलग विषय है। तो ये भी एक योग का हिस्सा है, स्वस्थ रहने का। इसी प्रकार से अगर मैं बात कहूँ तो जहाँ हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं, जहाँ हम लोग हमारा जो प्रोफेशन है, उसी प्रोफेशन को हमारे जितने भी कर्मचारीज हैं, हमारे एम्प्लॉइज हैं, हमारे सभी कर्मचारियों के साथ एक अच्छा व्यवहार बनाए रखें। इट शुड बी लाइक अ फैमिली रिलेशन। तो यही अगर हमारा जो परिवार है काम का, जो हम लोग जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं कॉलेजेस के अंदर, हमारे स्टाफ है, हमारे लेक्चरर्स अधिकारीज हैं, प्रिंसिपल हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी हमारे काम में जितने भी लोग संपर्क में आते हैं, उन सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखना, इसको भी योग कहा जाएगा और यही हमारा व्यवहारु योग कहा जाएगा। तो शुरुआत हमें इस प्रकार से करनी चाहिए। उसके बाद योग का इम्पोर्टेंस क्या है? अगर हम लोग इस प्रकार योग को समझते हुए, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखते हुए अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो योग हमें किस प्रकार लाभदायी है। योग जो है वो आज के जीवन में एकमात्र ही ऐसा माध्यम है जो तनाव मुक्त रहने के लिए मददरूप होता है। यानी कि आजकल हमारी जो लाइफ है, जैसे मैंने बताया कि इस फास्ट लाइफ के अंदर हम सभी प्रकार के तनाव से घिरे हुए हैं, चाहे वो काम का तनाव हो, हमारे घर का परिवार का तनाव हो, चाहे कोई हमारी फ्यूचर लाइफ का प्लानिंग करने का तनाव हो, चाहे हमारे खुद पर्सनल हमारी हेल्थ का तनाव हो, फाइनेंशियल का तनाव हो। तो ये सभी प्रकार के विभिन्न प्रकार के तनाव से हम सभी लोग जुड़े हुए हैं, है कि नहीं? आप मेरे साथ मेरी बात से सब लोग सहमत होंगे कि हम सभी लोग इस विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे तनाव से या बड़ा तनाव से हम सब घिरे हुए हैं। तो सबसे पहले इस तनाव को, मतलब कि इस स्ट्रेस को कैसे दूर करें? तो दूर करने के लिए हम लोग लेते हैं मेडिसिन, दवाइयां लेते हैं, लेकिन वो दवाई जरूरत है कि नहीं, वो हमें समझना चाहिए। तो योग ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से सबसे पहले तो आपका जो स्ट्रेस लेवल जो है, मेंटल जो ट्रॉमा है, एंजाइटी है, ये सभी चीजों से आप बिल्कुल रिलैक्स रह सकते हो। यानी कि योग का हर रोज नियमित उसका अभ्यास करने से, प्राणायाम करने से, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखने से, हमारा मन को शांत यानी कि गुस्सा कम करने से, हम हमारे जीवन में बहुत आर्ग्यूमेंट भी करते हैं, हाँ, हम लोग काफी गुस्सा भी हो जाते हैं। तो ये गुस्सा होना, चिंता करना, आर्ग्यूमेंट करना और सभी प्रकार की परेशानियों से मन से जुड़े रहना,
ये सभी चीजें हमारे मन के ऊपर एक स्ट्रेस क्रिएट करता है, तनाव उत्पन्न होता है। और हम लोग अगर नहीं है तो हम लोग बार बार एक ही चीज के ऊपर थॉट प्रोसेस शुरू करते हुए मात्र सिर्फ थॉट के माध्यम से इज ओनली बाय थिंकिंग प्रोसेस वी आर क्रिएटिंग स्ट्रेस। इट्स बिकम नाउ नेचुरल। वी ऑल आर अवेयर दैट मोस्ट ऑफ द डिसीज आर साइकोमेटिक। हम सब जानते हैं, विज्ञान ने भी प्रूव कर दिया है कि 90% लोग जो बीमारियां है इस वेरी मनोचिकित्सक रोग है। तो इसी प्रकार के रोग को कैसे दूर करना, अगर आपने ये 90% जो रोग मन से उत्पन्न होते हैं, अगर आपने उसको ठीक कर लिया, उसको सही कर लिया, तो आप काफी बीमारियों से मुक्त रह सकते हो। ये मेरा खुद का अनुभव है और मैंने काफी लोगों को योग और नेचुरोपैथी के माध्यम से बिना किसी दवाई के ठीक करवाया है और वो भी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। दे आर लिविंग वेरी वेरी हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। सो योग का इम्पोर्टेंस, सबसे पहले तनाव दूर होता है। आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा हमारे तनाव के माध्यम से वेस्ट होती है, उसका मिसयूज होता है, स्ट्रेस के माध्यम से होता है, तो वो सभी चीजें धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। आपकी जो एनर्जी है वो एनर्जी धीरे धीरे स्टोर होती जाएगी और एनर्जी का प्रॉपरली यूटिलाइज करना जरूरी है। अगर आप हमारी एनर्जी प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करेंगे तो हमारी एनर्जी जो है वो वेस्ट होती रहेगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट होने का जो रास्ता है वो है बोलना। जो आप सभी लोग हमारे आपके डे टू डे लाइफ में करते होंगे, क्योंकि आप ऑलमोस्ट यू ऑल आर लेक्चरर्स, हाँ डॉक्टरेट, आप डॉक्टर्स हो, लेक्चर हो, तो बोलने का आपका काम है। तो आपको तो बहुत ज्यादा जरूरत है एनर्जी को स्टोर करने की, यानी कि योग करने की, मेडिटेशन करने की, प्राणायाम करने की। तो सबसे पहले आपका तनाव दूर होता है, आपकी एनर्जी जो है वो स्टोर होती है, हमारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। यानी कि अगर हमने हमारा दिन की शुरुआत योग से की है तो हमारा जो पूरा दिन जो है वो बिल्कुल तनाव मुक्त रहेगा। आप पूरा दिन आप एंजॉय करेंगे, आप खुश रहेंगे, आप एनर्जेटिक रहेंगे, आप उत्साहित रहेंगे। तो ये सब फायदे हैं हर रोज योग करने के। तो इस योग के माध्यम से मैं आपको सबको संक्षिप्त में अगर कहूं तो इतनी सी बात बनती है कि अगर आप हर रोज अपने जीवन में सिर्फ 24 घंटों में से सिर्फ 30 मिनट योग को दीजिए, केवल 30 मिनट्स एवरी डे इन योर लाइफ, तो उसके अंदर आप कभी कभी सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, कभी कभी आसन कीजिए, कभी कभी ध्यान कीजिए, कभी कभी प्राणायाम कीजिए, कभी कभी लाफिंग थेरेपी जो है वो कीजिए, कभी ओमकार कीजिए जो मैंने अभी करवाया। तो ऐसे बहुत सारे योग के माध्यम जो है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, उसको अपनाएंगे और उसको मेक आपका लाइफ का हिस्सा बनाएंगे, उसको हैबिट बनाएंगे, तो मैं श्योरली चैलेंज करता हूं आपको कि आप योग छोड़ नहीं पाएंगे। अगर आपने 30 दिन हर रोज रेगुलरली योग करना शुरू कर दिया, तो अगर आप एक दिन भी योग नहीं करेंगे ना, तो आपको अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि योग के बिना मेरा पूरा दिन लेजीनेस रह रहा है, पूरा स्ट्रेस में रहता है, थकावट रहती है, टायर्डनेस पूरा दिन आप महसूस करेंगे। तो योग के माध्यम से आप अपनी हेल्थ ठीक करेंगे। दूसरा, आप जब योग करते हो तो योग के अपने आसपास जो हमारी ओरा बॉडी है, मैं थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल पे बात कर रहा हूँ, जो हमारी जो बॉडी है वो एक आप जो बॉडी देख रहे हैं इस सटल बॉडी, राइट, और सेकंड बॉडी जो है वो दिख नहीं पाती, इट्स अ ओरा बॉडी। तो जो ओरा बॉडी है वही जो ओरा है वो पॉजिटिवली उसका वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग बनता है। यानी कि हमारे मन के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी चीज हम लोग फॉलो नहीं कर पाते,
उससे थक जाते हैं, यानी कि हमारे मन के गुलाम बन जाते हैं, तो वो सभी चीजों से आप मुक्त हो पाओगे। तो इस योग के माध्यम से हमारी जो बॉडी की ऑरा है वो बहुत ही हेल्दी रहेगी, हैप्पी बनेगी, होली बनेगी। और साथ साथ हम जहां पर योग करेंगे ना, उसके आसपास का जो वातावरण है, सराउंडिंग प्लेस जो है, यानी कि आप अगर आप अपने रूम के अंदर कर रहे हो तो अपने रूम के अंदर बहुत ही जो वातावरण है वो पॉजिटिव रहेगा, शांत रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हमको देख के हमारे जो परिवार लोग हैं उसको भी प्रेरणा उत्पन्न होगी कि अगर मैं अकेला हर रोज योग कर रहा हूँ तो हमको देखते हुए हमारे परिवार वाले, हमारे पत्नी, हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, धीरे धीरे सब लोग जुड़ेंगे तो उनको भी यह बेनिफिट मिलेगा। तो आप सबसे इन शॉर्ट मैं यह कहूंगा योग के बारे में कि योग जो है वो बहुत ही सिंपल है, आसान है। बस आप इसको हर रोज किसी अच्छे योग एक्सपर्ट के साथ ट्रेनिंग लेके अपना योग अभ्यास शुरू कीजिए, प्राणायाम शुरू कीजिए। और मैं चैलेंज करता हूं कि आप जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे, बेस्ट करेंगे और आप खुशी खुशी करेंगे। आपके जीवन में सभी प्रकार की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। मेरा तो यही मानना है कि योग जो है वो जीवन है और जीवन ही योग है। योग में काफी सारे सूत्र भी हैं, उनकी बात नहीं करूंगा। जैसे अब जो भी प्रचलित है कि करो योग, रहो निरोग, योग करेंगे कोरोना को हराएंगे, ये सब चीज योग के माध्यम से हो सकती है। आजकल का जो जमाना अभी है, जो माहौल चल रहा है इस पेंडेमिक सिचुएशन का, इस सिचुएशन के अंदर आपको योग बहुत ही काम में आने वाला है। ये आप बराबर समझ लीजिए, ये मेरा पक्का तजुर्बा है। मैंने काफी लोगों को देखा है, मैंने करवाया है कि जिनको भी कोरोना की सिचुएशन आई थी, दोज हु आर बीइंग पॉजिटिव, दोज हु आर क्वारंटाइन, that each and every person they are following yoga by proper instruction। अगर उन लोगों ने ठीक से नियमित अभ्यास किया है तो उनको किसी भी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। वो अपने आप ही घर के अंदर रहते हुए प्रॉपरली योग अभ्यास से वो बिल्कुल रिलैक्स रह सकते थे और बिना किसी दवाई के वो नॉर्मल हो गए हैं। और नाउ आफ्टर पोस्ट कोविड भी वो बहुत हेल्दी है क्योंकि अभी वो योग को छोड़ नहीं पाते। तो ये इस टाइम के साथ को भी मैंने जोड़ दिया है। वैसे योग जो है वो तो पहले भी जरूरी था, आज भी जरूरी है और हमेशा जरूरी रहेगा। जब तक इस धरती पर ह्यूमन लाइफ जब तक है तब तक ये योग जरूरी रहेगा। तो बस इतना ही कहूंगा। तो अभी मैं विशाल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो कृपया एक मैंने योग का वीडियो शेयर किया हुआ है, तो आप सबको एक आपको पता होगा कि विश्व योग दिन 21 जून को मनाया जाता है। थोड़ी मैं 2 मिनट उसके लिए भी ले लेता हूँ कि विश्व योग दिन की जो शुरुआत है, हम सबको प्राउड फील होना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी ने इस योग दिन की शुरुआत की। जो हमारा अपना धरोहर है, हमारा अपना गौरव है, हमारा अपना खुद का विज्ञान है, शास्त्र है, इसी योग को पूरे विश्व में वो लेके गए थे। तो इस पिछले 7 साल से हम लोग 21 जून को विश्व योग दिन मनाते हैं। तो मुझे खुशी है कि इस 21 जून के लिए काफी लोग अपने आप घर पे बैठे बैठे इस माहौल के अंदर विद फैमिली योग करते थे, तो मुझे खुशी होती है। लेकिन दुख की बात यह भी होती है कि हम सभी लोग इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सिर्फ एक दिन के लिए योग मनाते हैं या फिर एक सप्ताह मनाते हैं। तो ये गलत तरीका है योग को सेलिब्रेट करने का। तो मैं चाहूंगा कि 21 जून के लिए ही सिर्फ योग दिन ना मनाएं, आप सभी लोग अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए, तभी इसका असर होगा, तभी इसका बेनिफिट आपके ऊपर होगा। तो एक विश्व योग दिन जो हम लोग अभी 21 जून को मनाया था, उनका एक अवेयरनेस वीडियो जो है वो मैंने शेयर किया हुआ है। तो विशाल जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया सभी को ये वीडियो सबको बताए। Sure, sir. 1 minute, please.
या तो आप सभी को मेरी बातें ठीक से समझ में आ रही होगी। जो जो चीज मैं बता रहा हूँ कृपया ठीक से समझिएगा, क्योंकि ये जो मैं चीज बता रहा हूँ ये सब कोई ठीक से कहता नहीं है। आजकल के जमाने में सब लोग योग को योगा बना रहे हैं और उसको अलग तरीके से योग करवा रहे हैं, कर रहे हैं। तो जो हमारा ट्रेडिशनल योग है, जो पहले ऋषि मुनि जो करते थे, उसी चीज को जीवंत रखना बहुत जरूरी है। तो मैं उसी चीज के ऊपर काम कर रहा हूँ। जी विशाल जी। Ready, sir. યોગ એટલે મનને મજબૂત અને તનને તંદુરસ્ત કરતી આપણી સ્વાસ્થ્ય પરંપરા. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી આપણા યોગને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે લઈ ગયા અને વિશ્વએ કરી શરૂઆત 21મી જૂનને યોગ દિવસ તરીકે ઉજવવાની. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના નેતૃત્વમાં અનેક ક્ષેત્રે અગ્રેસર ગુજરાત યોગમાં પણ પહેલું છે. 33 જિલ્લાઓમાં 750થી વધુ યોગ કોચ દ્વારા 53,000 યોગ ટ્રેનર્સ તૈયાર કરાયા. કોરોના કાળમાં વધુ 21,000 યોગ ટ્રેનર્સને તાલીમ અપાઈ. અખૂટ ઊર્જાનો આ ખજાનો ઘેર ઘેર પહોંચાડવાની પ્રતિબદ્ધતા સાથે આવો અંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસે 21મી જૂને મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાથે આપણે પણ યોગ કરીએ. તો ગુજરાતીઓ આવો ઘરમાં રહીને યોગ કરીએ. આપણા ગુજરાતને યોગમય બનાવીએ. Shall I जी। share one video? दूसरा वीडियो भी शेयर कर दूं सर? नहीं नहीं, धन्यवाद विशाल जी। माफी चाहूंगा पहले कि पूरा ये वीडियो गुजराती लैंग्वेज में था, क्योंकि ये जो वीडियो था बेसिकली गुजरात स्टेट योग बोर्ड बना हुआ है और उसी योग बोर्ड का मैं एक हिस्सा हूँ एज ए राजकोट योग कोच। तो एक उसकी योग बोर्ड की एक अवेयरनेस के लिए और साथ में विश्व योग दिन की अवेयरनेस के लिए ये पूरा वीडियो बनाया गया था, इसलिए वो गुजराती लैंग्वेज में था। लेकिन आई होप कि आप सब लोग ठीक से समझ रहे होंगे, समझ में आया होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, सभी लोग आजकल योग को अपना रहे हैं। सब लोग, जो भी लोग को हेल्दी रहना है, जिनको मालूम पड़ गया है कि अभी यही रास्ता है, योग ही एक ऐसा रास्ता है कि जो हमको हमेशा स्वस्थ बनाए रखता है, तो सब लोग योग कर रहे हैं। और हर साल आपको सुनने में आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि जब 2016 में पहली बार विश्व योग दिन की शुरुआत हुई थी, तब सिर्फ 145 कंट्रीज ने इस विश्व योग दिन में हिस्सा लिया था। लेकिन आज आखिर में जो 2021 में जो योग दिन मनाया गया, उसी विश्व योग दिन के अंदर 194 कंट्रीज ने हिस्सा लिया है, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और उतना ही नहीं, अगर मैं हमारे भारत देश की बात करूं तो पिछले 2 साल से हम लोग इस माहौल की वजह से हम लोग घर बैठे योग कर रहे हैं। तो घर बैठे बैठे करोड़ों लोगों ने, हिंदुस्तान में सभी लोगों ने योग को घर बैठे करवाया है और किया है। तो ये बहुत ही खुशी होती है मुझे कि आज सभी लोग इस प्रकार योग से जुड़े हुए हैं, योग की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी अवेयरनेस को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने एक योग बोर्ड भी बनाया है। और इसी प्रकार भारत में दूसरे भी स्टेट के अंदर अगर बात करूं तो गुजरात के अलावा पंजाब में भी पंजाब योग बोर्ड बना हुआ है, हरियाणा में है और यूपी में है। ये 3 स्टेट के अंदर भी योग बोर्ड बना हुआ है। और ये दिन दूर नहीं है कि बहुत ही कुछ समय में हमारे भारत के सभी राज्यों के अंदर योग बोर्ड बन जाएगा। और जो पहले हमारे एजुकेशन के अंदर योग एज ए सब्जेक्ट आ रहा था, अब वापस वो शुरू हो जाएगा। जो हमारी गुरुकुल परंपरा थी, उसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए वापस हमें योग की तरफ जाना ही पड़ेगा। अगर हमको और हमारी आने वाली जो हमारे बच्चे हैं उनको अच्छा स्वास्थ्य देना है, अच्छी हेल्दी लाइफ देनी है, हैप्पी लाइफ देनी है, तो हमको योग को तरफ जाना ही पड़ेगा। तो बस इसी बात को, योग के विषय को मैं समाप्त करते हुए, मेरा जो दूसरा विषय जो बहुत इंपॉर्टेंट वैसा ही है, वो है नेचुरोपैथी, यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा। इस विषय के ऊपर मैं मेरी बात शुरू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ विशाल जी को कि मेरी जो पीपीटी है वो पीपीटी आप सबको शेयर की जाए। Sure, sure, sir.
और मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, आखिर में हम लोग क्वेश्चन भी रखेंगे। आपको अगर कुछ ना कुछ क्वेश्चन है, इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट माय सेशंस, रिगार्डिंग माय सेशंस, तो काइंडली प्लीज जैसे यहाँ की सिस्टम होगी इस प्रकार से आप मैसेज करें या फिर अपना अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आखिर में 5-10 मिनट्स हम लोग ऐसा करेंगे। Screen is Yes. visible, sir. यस, Please let me know when slide is going to be changed. हाँ, प्लीज नेक्स्ट कीजिए। हाँ, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। नेचुरोपैथी क्या है, किसको नेचुरोपैथी कहते हैं? मैं पहले आशा करता हूं कि यहाँ पर जितने भी मेरे पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं, मेरे मित्र जुड़े हुए हैं, वो आई होप के नेचुरोपैथी वर्ड सब लोगों ने सुना होगा एटलीस्ट। तो अगर नहीं सुना है, अगर जाना नहीं है, तो आप सभी लोग ठीक से समझने की कोशिश करता हूं कि नेचुरोपैथी जो है इज अ बेसिकली लाइफस्टाइल। हमारी जीवन जीने का तरीका नेचुरोपैथी है, हमारी जीवन शैली नेचुरोपैथी है। तो नेचुरोपैथी का अगर डेफिनेशन करना हो ठीक से, तो मैं कहता हूं कि ट्रेडिशनल एंड साइंटिफिक वे ऑफ लिविंग हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ फॉरएवर। सो हमें हमारे परंपराओं को वैज्ञानिक तरीके से अगर तंदुरुस्त और खुशहाल जीवन जीना है हमेशा के लिए, तो उसी को नेचुरोपैथी के पास आना पड़ेगा, नेचुरोपैथी को जीवन में अपनाना पड़ेगा। यही रास्ता है टू बी अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ फॉरएवर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, अभी मेरा सवाल है कि व्हाट इज नेचर क्योर। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि नेचर क्योर क्या है। अभी नेचुरोपैथी के अंदर काफी सारे नेचुरोपैथी सेंटर्स बने हुए हैं, और वो नेचुरोपैथी सेंटर के द्वारा आपको नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट दी जाती है, यानी कि नेचर क्योर होता है। तो वो क्या है बेसिकली? सो नेचर क्योर इज अ कंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट which aims to removing the basic root of cause. This is very, very most important. To removing the basic root of cause of disease through the various elements available from our nature. हमारे प्रकृति में जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स जो अवेलेबल है, उसकी मदद से एक कांस्टेंट क्योर करना। और वो भी कैसे करना? हमारे बॉडी के अंदर जमा हुए जो बेसिक रूट कॉज है, यानी कि हम लोग जो बीमार होते हैं, डिसीज हमारे बॉडी में जो होते हैं, उसको बेसिक रूट से कैसे क्लीन करना, कैसे क्योर करना, वहां से क्लीन करने की जो प्रोसेस है, और वो भी प्रोसेस कैसी? कांस्टेंट प्रोसेस। उस कांस्टेंट प्रोसेस को नेचुरल एलिमेंट्स के द्वारा ठीक करने की पद्धति को नेचर क्योर कहा जाता है। अगर इसको आप समझ नहीं पाते तो बात आगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ यूनिकनेस। नेचर क्योर जो है, नेचुरोपैथी जो है, उसका जो सिद्धांत है वो एक यूनिकनेस के ऊपर काम करता है। यानी कि कोई भी बीमारी हो, उसका कारण एक ही होता है, यानी कि वन डिसीज वन रीजन। इस प्रिंसिपल के ऊपर नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट हो की जाती है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, यानी कि समरूपता का सिद्धांत। सभी व्यक्तियों को एक ही प्रकार के सिद्धांत के ऊपर देखा जाता है और उसको ठीक किया जाता है। जैसे नीचे लिखा गया है कि वन रीजन वन डिसीज वन ट्रीटमेंट, यानी कि रीजन एक होता है, बीमारी भी एक होती है, और उसका ट्रीटमेंट वो भी एक होता है। वो कैसे है आपको आगे समझ में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, अभी है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी। तो नेचुरोपैथी किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है, ये आपको जानना समझना बहुत ही जरूरी है। कि नेचुरोपैथी जो है वो एक पद्धति तो है, लेकिन किसके माध्यम से वो हमको ट्रीटमेंट देता है, वो ठीक करता है, तो वो है 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, यानी कि पंच महाभूत। ये 5 एलिमेंट्स के माध्यम से हमारी बॉडी को
क्योर किया जाता है, केयर किया जाता है, जिसमें पहला है अर्थ, फिर नेक्स्ट सेकंड है वाटर, तीसरा है फायर, फोर्थ वन इज एयर एंड द लास्ट एंड फिफ्थ वन इज स्काई। आप सब लोग जानते होंगे कि दिस इज द 5 एलिमेंट्स of our nature, and same way our body is made by these 5 elements also. So what does it mean? हमारा बॉडी जिस 5 तत्व से बना हुआ है उसी 5 तत्व से ही सभी डिसीज की ट्रीटमेंट की जाती है। यानी कि मैंने एग्जाम्पल के दौर के ऊपर लिखा हुआ है कि जो अर्थ है उसको हम लोग बोलते हैं अभी के जमाने में मड थेरापी। दूसरा है वाटर यानी कि हाइड्रोथेरापी, वाटर थेरापी। तीसरा है फायर यानी कि सन, हीट, स्टीम, कुछ हॉट कोल्ड पैक्स होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग फायर एलिमेंट्स। तो फोर्थ वन इज एयर, एयर यानी कि जो हमारा ब्रीदिंग विदाउट प्रोसेस जो रहता है, यानी कि बोलते हैं योग के लैंग्वेज में प्राणायाम जो हम लोग करते हैं, ब्रीदिंग विदाउट करते हैं, उसको बोलते हैं एयर, 5वां एलिमेंट, चौथा एलिमेंट। और लास्ट वन इज स्काई। स्काई मींस फास्टिंग करना, हमारे शरीर को फूड के बिना आराम देना, उसको फास्टिंग कहते हैं। तो ये 5 विभिन्न प्रकार की थेरापी या पद्धति या एलिमेंट्स के माध्यम से हम सभी लोग ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी हमारे जो मेन जो बात थी कि व्हाट इज द बेस ऑफ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, हम किस चीज के द्वारा, कौन से ऐसी बात है जो सब्जेक्ट है जिसके माध्यम से हम हमेशा के लिए हेल्दी और हैप्पी रह सकते हैं। मैं आप सभी को एक सवाल करना चाहूंगा कि आज के समय में इस स्ट्रेसफुल लाइफ के अंदर क्या पॉसिबल है कि हम लोग हमेशा के लिए, जब तक हमारा लाइफ है, हम लोग हेल्दी रह सकते हैं थ्रू आउट अवर लाइफ, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी रोग के हम लोग जिंदगी जी सकते हैं? क्या हम खुश रह सकते हैं हमेशा के लिए? ये पॉसिबल है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि इट इज वेरी वेरी पॉसिबल एंड वेरी इजी बाय दिस 5 पिलर्स जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला है वो है डाइट, हमारा फूड, हमारा भोजन। दूसरा है योग एंड एक्सरसाइज। थर्ड वन इज हमारा लाइफस्टाइल, हमारी हैबिट। फोर्थ वन इज रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। एंड द लास्ट वन, 5वां है just a second. Visible on screen, sir. Sorry for delay. हाँ, now it's visible. हाँ, तो पहला है हमारा डेली रूटीन्स एंड हैबिट। सेकंड जो है इट्स अवर डाइट। थर्ड वन इज योग एंड एक्सरसाइज। फोर्थ वन इज मेंटल एटीट्यूड यानी कि मेंटल थॉट्स, मेंटल हेल्थ। एंड द लास्ट वन इज रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। तो ये 5 चीज जो है वो हमारे हेल्दी रहने का सीक्रेट है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको हरदम हेल्दी और हैप्पी रहना है तो यही 5 चीज के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो आज मैं आगे इसी की 5 चीज के ऊपर आपको बात कहने वाला हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो सबसे पहला जो पिलर है इंपॉर्टेंट जो है वो है डाइट यानी कि हमारा फूड, हमारा भोजन। तो भोजन जो है वो बहुत बड़ा विषय है, इसको मैं बहुत ही संक्षिप्त में कहने की कोशिश करूंगा क्योंकि हमारा सेशन जो है ऑलरेडी लेट चल रहा है, आधा घंटा। सो आई विल ट्राई टू कंक्लूड वेरी ऑन टाइम। सो पहला जो टॉपिक है वो डाइट है। तो डाइट में हमें सवाल होना चाहिए, ये मैंने 5 सवाल लिखे हुए हैं। यानी कि हम लोग भोजन क्यों करते हैं, फिर हमें भोजन कब करना चाहिए, हमें भोजन कितना करना चाहिए, और
हमें भोजन क्यों लेना चाहिए और भोजन में क्या क्या होना चाहिए, ये 5 क्वेश्चन जो है ये वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हेल्दी रहना है, अगर आपको बिल्कुल ही बीमार नहीं पड़ना है, तो आपको ये 5 क्वेश्चन के ऊपर अच्छी तरह से फॉलो करने की बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई वी नीड टू ईट। सो बेसिकली हम भोजन खाते हैं, हम लोग बोलते हैं खाना खाने के लिए, यानी कि भूख लगती है, यानी कि जिंदगी जीने के लिए हम लोग ऐसा बोलते हैं, या फिर बोलते हैं कि एनर्जी लेने के लिए, ताकत आती है इसलिए, थकान ना हो इसलिए। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। बेसिकली हमारे बॉडी नीड्स न्यूट्रिशन, जिसे मैंने लिखा हुआ है कि बॉडी नीड्स न्यूट्रिशन फॉर फंक्शनिंग एंड सर्वाइवल। हमारे शरीर को टकाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, उसको ऑपरेट में रखने के लिए पोषण युक्त भोजन यानी कि न्यूट्रिशन फूड लेना बहुत जरूरी है। अभी के समय में आप सबको पता होगा कि हम सभी लोग जो हमारा भोजन है ना, वो ठीक तरीके से लेते नहीं है। यानी कि भोजन क्यों करना है हमको पता ही नहीं रहता। हम सिर्फ क्या करते हैं, जब टाइम होता है खाना खाने का तो हम लोग खाना खा लेते हैं, जब टाइम होता है नाश्ता करने का नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन क्या हमको भूख लगती है तब खाना खाते हैं या ऐसे ही खाना खा लेते हैं? तो अगला टॉपिक जो है वो है व्हेन वी शुड ईट। हमें भोजन कब करना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है पार्ट। तो मैंने लिखा है कि व्हेन वी आर रियली हंग्री, वेरी हंग्री, जब हमारी बॉडी डिमांड करती है, हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर जब एक हीट क्रिएट होता है, हाँ, जो बोलते हैं ना कि सही तरीके से हमको भूख लगी है, वही अगर भूख लगती है तभी हमें भोजन लेना चाहिए। ये बहुत ही छोटी बात लेकिन इंपॉर्टेंट बात है। यूजुअली आपको सबको अगर हम लोग साइंटिफिकली बात करें तो हमारा बॉडी का जो फंक्शनिंग करना जो पार्ट है, अगर उसको करने के लिए हम लोग भोजन लेते हैं, लेकिन हमारा बॉडी का जो ग्रोथ है, आप सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट वी आर, हमारा जो फिजिकल ग्रोथ है वो तो रुक गया है। तो फिजिकल ग्रोथ रुकने के बावजूद भी हम लोग भोजन लेते हैं, तो वो भी एक ध्यान में रखने की बात है, क्योंकि हमारे डाइट से, फूड से जो पोषण मिलता है उससे हमारा बॉडी का विकास होता है। और यही फिजिकल ग्रोथ जो है उसके लिए भोजन जरूरी होता है। लेकिन हम सभी लोग अभी इस चीज को ध्यान में न रखते हुए, बिल्कुल भूख न लगते हुए हम लोग खाते ही रहते हैं। तो अभी बात करना है कि हमें कितना भोजन लेना है, हाउ मच फूड। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है हाउ मच फूड शुड वी ईट। तो सफिशिएंट फूड यानी कि हमें जितना भूख लगी है, हाउ मच वी आर हंग्री, उस हंगर को ध्यान में रखते हुए 80% ऑफ हंगर वी शुड ईट प्रॉपरली, यानी कि 20% हमें हमारी भूख को खाली रखना है। अगर हमें 4 रोटी की खाने की जरूरत है तो सिर्फ आप 2 रोटी खाइए, 3 रोटी खाइए। इस प्रकार से हमें फूड की क्वांटिटी डिसाइड करनी चाहिए। फिर चौथा पार्ट है हाउ शुड वी ईट फूड, हमें भोजन कैसे करना चाहिए। ये सब भी बातें बच्चों वाली बातें हैं, आपको लग रही होगी, लेकिन बच्चों वाली बातें ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम सब बड़े हो गए होने के बाद बच्चे वाली चीजों को छोड़ चुके हैं। और इसलिए ही इसी बड़प्पन में, इसी एक ईगो के अंदर हम लोग जिंदगी जीते हैं और कुछ कुछ बीमारी हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। तो हमें भोजन कैसे करना चाहिए, जिसे हम लोग जानते हैं कि chew food 32 times and make like a liquid. So what does it mean? कि हमें हमारा जो खाना है ना वो चबा चबा के पीना है, और जो हमारा पानी जो है उसको चबा चबा के खाना है।
उसी प्रकार हमारा खाने का तरीका होना चाहिए। क्यों ऐसा करना है? उसका रीजन नंबर 1, हमारा जो दांत है, टीथ है, उस टीथ का एक्सरसाइज जो है ना, वो है च्यूइंग। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट टू डू एक्सरसाइज फॉर आवर टीथ टू बी हेल्दी, टू बी स्ट्रॉन्ग इज च्यूइंग। यानी कि जितना आप चबाओगे, जितना आप अच्छी तरह से उसको खाने को लिक्विड बनाओगे, उतना ही अपने दांत मजबूत बन सकते हैं। और सेकंडली, जितना आप खाना चबाओगे, उतना ही हमारा खाना जो है वो लिक्विड बनेगा, और जितना खाना लिक्विड बनेगा, उतना ही हमारा पेट के अंदर जो फूड जाएगा, उसको डाइजेस्ट करने में कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो अगर एफर्ट्स कम होगा तो खाना जल्दी हजम होगा, और जल्दी हजम होगा तो हमें जल्दी भूख लगेगी, हमें लेजीनेस कम होगी, हमें नींद कम आएगी। आप सबको पता होगा कि यूजुअली जब जब आप सब लोग खाना खाते हो, तो खाना खाने के बाद हमें नींद आती है कि नहीं आती? आप सब लोगों ने ये फील किया होगा। तो ये जो नींद आती है, वो क्यों आती है? क्योंकि खाना खाने के बाद हमारा जो ब्लड है ना, वो ब्लड जो माइंड से होते होते कहाँ जाएगा? हमारे स्टमक के ऊपर आएगा। क्योंकि खाने को हजम करना है, इसको डाइजेस्ट करना है, तो डाइजेस्ट करने के लिए ब्लड को वहां पहुंचना पड़ेगा, और जब ब्रेन से ब्लड धीरे धीरे होकर पेट पे जाएगा, तो हमें नींद आती है। तो ये बेसिकली साइंटिफिक रीजन है नींद आने का, कि जब हमारा ब्रेन से ब्लड होके स्टमक तक जाएगा, तो हमें नींद आती है। तो इसीलिए कम से कम फूड लीजिए, जितना भी फूड ले, पूरा चबा चबा के उसको आहार लेने की कोशिश कीजिए। और तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है, हमारे जब हमें भूख लगती है ना, सही भूख लगती है, अच्छी भूख लगती है, तब हमारे मुंह के अंदर एक सलाइवा क्रिएट होता है ना? सलाइवा, मुंह में पानी आता है। हमें आसान बात जबान में बात करूं तो हमें मुंह में पानी आ जाता है। यानी कि पानी मतलब, अगर हम सबका जो फेवरेट फूड है, फेवरेट डिश है, अगर उसका मैं नाम लूं, यानी कि किसी भी स्वीट है, कोई गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, बर्फी है, हाँ, अगर ऐसी चीज हमारे सामने आ जाए, अब सबको भूख लगी होगी क्योंकि खाने का टाइम ऑलमोस्ट हो रहा है। तो अगर आपके सामने आपका टेस्टी डाइजेस्टिव फूड अगर आ जाए, स्वादिष्ट फूड अगर आ जाए, तो क्या होगा? आपके मुंह में पानी आता है। तो ये पानी जो है, यानी कि सलाइवा, ये सलाइवा भी हमारे भोजन को पाचन करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो अभी आखिरी पॉइंट जो है कि व्हाट काइंड ऑफ फूड हमें लेना चाहिए। तो सिंपली जो हमारा फूड है वो फ्रेश होना चाहिए। हम लोग एक्चुअली अभी के समय में फ्रेश फूड, यानी कि मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा, फ्रेश यानी कि जितना भी मार्केट से सब्जी फल लेते हैं, उनको पका के तुरंत खाना, यानी कि कुक्ड फूड जो है, उसको विदिन 30 मिनट्स के अंदर आपको खाना जरूरी है। अगर आप लोग विदिन 30 मिनट्स खाना नहीं खाते, तो वो फूड धीरे धीरे एक्सपायर होता जा रहा है। जैसे किसी भी पैकेज फूड के अंदर एक्सपायरी लिखी होती है, वैसे ही कुक्ड फूड की एक्सपायरी होती है, जो हमें ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है। तो फ्रेश फूड लीजिए। दूसरा है बैलेंस फूड लीजिए, यानी कि हमारा आहार जो है वो सभी प्रकार के सब्जी का, सभी प्रकार के अनाज का, सभी प्रकार के फल का बैलेंस डाइट होना चाहिए। यानी कि सभी जितने भी हमारे मिनरल्स है, न्यूट्रिशंस है, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, कैल्शियम, ये सभी प्रकार के मिनरल्स हमारे बॉडी को जरूरत रहती है। और इसी सभी प्रकार के मिनरल्स, प्रोटीन्स हमारे बॉडी में अगर जाएंगे, तभी हम लोग हेल्दी रह पाएंगे, तभी हमारा डाइट जो है वो बैलेंस कहा जाएगा। तो हमारा डाइट बैलेंस होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, यानी कि सभी प्रकार का पोषक तत्व, जैसे मैंने कहा, वो होना चाहिए। और आखिर में डाइजेस्टिव, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि पाचक देह होना चाहिए। अगर इफ अवर फूड इज नॉट डाइजेस्टिव, then it will become
problem. We know very well that about this because after our food is not digested properly in our morning session, in our early morning when we go for toilet, it's become problem. So हमारे पेट को साफ करना बहुत जरूरी है. अगर हमारा पेट साफ नहीं होता तो हमारा पूरा दिन जो है वो मेंटल डिस्टर्ब रहता है. आजकल के समय में हम सभी लोग सबसे 2 प्रेशर जो है ना उससे घिरे हुए हैं. पहला प्रेशर है समस्या पेट के प्रेशर की. हमारा पेट का जो प्रेशर है ना वो ठीक नहीं है, वो प्रेशर आता नहीं है. और दूसरा प्रेशर जो है मन का प्रेशर, वो जाता नहीं है. तो ये 2 प्रेशर जो है हम सभी ऑलमोस्ट इस 2 प्रेशर से परेशान है. उसको ठीक करना बहुत जरूरी है, वो बेसिक चीज है. तो ज्यादा मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. थोड़ा जल्दी लेने की कोशिश करता हूँ. डाइजेशन ऑफ हमारा डिफरेंट जो फूड है उसको सभी फूड के अलग अलग टाइमिंग रहते हैं. तो डाइजेशन टाइम ऑफ अवर वेरियस फूड, तो जो ग्रीन कॉलम में लिखा हुआ है वो फूड जो है वो जल्दी डाइजेस्ट होता है. और जो रेड कॉलम में लिखा हुआ है वो सभी फूड जो है इट विल टेक मोर टाइम टू डाइजेस्ट. सो आप सभी लोग देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के फूड यानी कि ग्रीन सलाद, रॉ फूड, फ्रूट्स, फ्रूट जूस, ड्राई फ्रूट्स, ये सभी जल्दी हजम होते हैं. और जो रेड कॉलम में लिखा हुआ है जो आप पढ़ सकते हो, ऑयली फूड है, चीज है, बेकरी फूड है, डेयरी फूड है, टी, कॉफी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम सब लोग रूटीन में लेते हैं, इट विल टेक 20 to 22 आवर्स टू डाइजेस्ट. आप सब लोग जरा गौर कीजिएगा इसके ऊपर. फिर है बाहर का फूड यानी कि पंजाबी फूड, मैदा, बेकरी फूड, वो 30 घंटे लेता है हजम होने में. और अगर कोई यहाँ पर इफ एनीवन इज नॉन वेजिटेरियन फूड जो लेता है तो इट विल टेक हाईएस्ट टाइम 48 आवर्स, 2 days लेता है हमारे शरीर में भोजन को पचाने में. तो आप थोड़ा समझ लीजिएगा इस दोनों चीज को कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हाँ जल्दी. तो हेडिंग है माइंडफुल ईटिंग यानी कि सोच समझ के खाना. इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. हम लोग सोच समझ के खाना नहीं खाते, इसीलिए सब समस्या उत्पन्न होती है. सो फर्स्ट वन इज वी शुड ईट रॉ फूड, मोर fruits, vegetables and dry fruits. Then second point is we should eat seasonal fruits and vegetables. ये भी बहुत important point है. हम लोग आज के जमाने में जहाँ सभी फल every year मौजूद होता है, so it's not called seasonal food. वो सभी जो फल और सब्जियां हैं it's come from cold storage. पूरे साल हमको जो फल सब्जी मिलती है वो स्टोरेज के अंदर स्टोर किया जाता है. और वो जो फल सब्जी है वो सही मायने में हेल्दी नहीं होती, न्यूट्रिशियस नहीं होती, इसलिए हमें सीजनल फूड के ऊपर ध्यान रखना चाहिए. तीसरा पॉइंट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है अवॉइड. हमें अवॉइड करना है. क्या अवॉइड करना है? वो है शुगर, सॉल्ट, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, मैदा एंड वनस्पति घी. ये 5 चीजें ऐसी है जिसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है. दूसरा है ओवर ईटिंग एंड रीहीटिंग ऑफ फूड. थर्ड वन, नेक्स्ट वन इज कुक्ड फूड. जैसे मैंने पहले बताया कि 45 मिनट में हमें भोजन कर लेना चाहिए. देन मल्टीपल फूड और ऑपोजिट फूड जो विरुद्ध आहार है, और या फिर एक साथ 5-6 चीजों को खाना. जैसे हम लोग जाते हैं फंक्शन में, मैरिज में, किसी पार्टी में, किसी ओकेजन में, वहां पर कितनी सारी वेराइटीज होती है खाने की. तो वो जो हम लोग करते हैं ना, सब कुछ चीज डालते हैं, तो वो गलती करते हैं, उससे भी हम लोग हमारी सेहत बिगड़ती है. देन इमीडिएट डीप स्लीप, खाने के बाद तुरंत सोना. देन लास्ट वन इज इमीडिएट एक्सरसाइज आफ्टर और बिफोर मील. ये तो बेसिक चीज है, आप सब लोग डेफिनेटली जानते होंगे. सो ये चीज जो है इसको आपको फॉलो करना है. यस, द नेक्स्ट वन इज डेली शेड्यूल. शेड्यूल कैसे फॉलो करना है? तो ये मैंने मेरे हिसाब से
ये कुछ हमारा रूटीन जो है कैसे होना चाहिए, हाउ शुड व्हेन वी शुड वेक अप, हमारी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, हमारे ब्रेकफास्ट कब करना लेना है, हमें लंच कब लेना चाहिए, हमें कब आराम करना है, व्हेन शुड वी ईट इन द इवनिंग टाइम, डिनर कब लेना है, वॉकिंग जरूरी है, और आखिर में सोना कितने बजे है। तो ये मेरे हिसाब से मैंने एक कॉमनली शेड्यूल बनाया हुआ है, तो आप सब लोग इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट प्लीज विशाल जी। हाँ, जैसे मैंने पहले बता दिया, फिजिकल एक्सरसाइज हमें हमारे जीवन में योग और फिजिकल एक्सरसाइज को महत्व देना है, तो बस वही पॉइंट लिखे हुए हैं। नेक्स्ट। हमारा रूटीन्स और हमारी हैबिट्स कैसा होना चाहिए, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे मैंने पहले बता दिए। और हाँ, जिसमें इंपॉर्टेंट है, लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीजिंग एंड पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। हम लोग पूरे दिन के अंदर हमेशा, जैसे मैंने बताया कि आप सभी लोग तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो आप सभी को प्लीजिंग और पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है हेल्दी रहने के लिए। बाकी सब पॉइंट जो है मैंने ऑलरेडी पहले बता दिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, मेंटल हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। ये चीज जो है ना, इसको मैं सिंपली कहूं तो हम सभी लोग फिजिकली और मेंटली रिलैक्स तो करते हैं, लेकिन रेस्ट हो नहीं पाता। हम लोग रात को रोज सोते हैं, लेकिन डीप स्लीप हो नहीं पाती, या फिर नींद नहीं आती। दिस इज वेरी कॉमन डिसीज इज गोइंग टू बिकम नाउ। एवरीबडी हैज इंसोमेनिया। हाँ, जिनको नींद नहीं आती, अनिंद्रा रहती है, वो तनाव में रहते हैं, कुछ न कुछ सोच में रहते हैं, और इंसोमेनिया भी रहता है। तो ये सब चीजें जो हैं वो ठीक से हो नहीं पाती, यानी कि पूरी अगर नींद नहीं हुई है, आपका मन और शरीर को पूरा रेस्ट नहीं हुआ है, तो आपका बॉडी ठीक से आपको काम नहीं दे पाएगा, आप पूरा दिन ठीक से फोकस नहीं कर पाओगे, और वो धीरे धीरे आदत बनती है, और हमारी हेल्थ के ऊपर वो इफेक्ट करता है। हमारा पेट के ऊपर होता है, हमारे ब्रेन के ऊपर होता है, हमारे हेयर के ऊपर होता है, हमारे आइस के ऊपर होता है, सभी जगह पर इसकी इफेक्ट होती है। तो एवरेज कॉमनली 6 to 7 आवर्स हमें स्लीप लेनी चाहिए। और योग के अंदर एक सेशन आता है योगासन के अंदर, शवासन का, यानी कि फिजिकल एंड मेंटल रिलैक्सेशन का। अगर आप ये चीज हर रोज 15 मिनट के लिए करते हो, तो आप बहुत ही अच्छा फील करोगे। हर रोज आप 15 मिनट का शवासन का प्रैक्टिस किया कीजिए। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, द लास्ट स्लाइड, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, यानी कि हमारे थॉट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, खाना सही ले रहे हो, योगाभ्यास कर रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, लेकिन अगर आपका सोच, आपका थिंकिंग ठीक नहीं है, अगर वो नेगेटिव है, अगर वो स्ट्रेस में है, अगर वो एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, तो ये सब कुछ बेकार जाएगा। तो ये आखिर का जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, यानी कि हमें हमारे जीवन में सभी प्रकार के सिचुएशन में किस प्रकार हमारे मन को शांत और सकारात्मक रखना है, सात्विक रखना है, ये बहुत जरूरी है। भावनात्मक हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, ये दोनों हिस्से बहुत जरूरी है। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक अच्छा एक इवेंट है, मतलब कि एक गांव के अंदर, गांव का ही रहने वाला आदमी, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा कि पॉजिटिव थिंकिंग किसे कहते हैं, उसका मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ। तो एक गांव का रहने वाला आदमी गांव के अंदर सोने जा रहा था, दोपहर का समय था,
खाना खाने के बाद का समय था, तो अपने खुले खेत के अंदर पेड़ के नीचे सोने जा रहा था। जैसे हम लोग यूजुअली सोने के पहले हमको योनिंग आता है, उबासी आती है, तो उसको भी नेचुरली उबासी आई। और अनफॉर्चुनेटली हुआ यूं कि उसी टाइम पे पेड़ के ऊपर एक पंछी बैठा हुआ था, और वो पंछी को भी उसी समय ही उसको प्रेशर आया। तो पंछी को उसी समय प्रेशर आया जब वो भाई साहब जो सोने वाले थे उनको उबासी आई। और हुआ यूं कि प्रेशर आना और उबासी आना यानी कि मुंह खोलना, दोनों चीज एक साथ हुई। और आप जरा इमेजिन कीजिए कि किस प्रकार से घटना हुई होगी कि पंछी को प्रेशर आना और भाई साहब का मुंह खुलना, दोनों एक साथ होते ही किस तरह होता है आप समझ सकते होगे। हमको जल्दी ही गुस्सा आ जाएगा, या फिर गुस्सा आते ही हमारा जो चप्पल है, हाँ जूते हैं, उसको उठा के पंछी को मारेंगे, है कि नहीं? ये हमारा नॉर्मल बिहेवियर है, इट्स रूटीन रिएक्शन। लेकिन अभी हुआ क्या जरा समझिए। उसी जो भाई साहब थे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने तो सबसे पहले थैंक यू बोला, धन्यवाद। पंछी को थैंक यू बोला, और क्या कहा, भगवान को भी बोला धन्यवाद, हे भगवान धन्यवाद। और फिर कहा कि अच्छा है कि जो काऊ और बफेलोज हैं वो हवा में उड़ती नहीं है। इट इज गुड थिंग दैट बफेलोज एंड काउज आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। तो वो इतना पॉजिटिव था कि उन्होंने इस चीज को इस पॉजिटिव वे पे लिया। आई होप कि मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। ये एक इस वन टाइप ऑफ सटायर, इस कॉमेडी विद सटायर। आई होप के मेरी बात को समझ रहे होंगे कि हमारे जीवन में जो सिचुएशन क्रिटिकल बनती है, पैनिक होता है, तो उसी पैनिक में भी हमें किस प्रकार प्लेजर ढूंढना है, ये मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं नेचुरोपैथी के अंदर। क्या क्या ट्रीटमेंट्स के माध्यम से विदाउट एनी मेडिसिन हम लोग क्योर हो सकते हैं। नेक्स्ट, ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज कवर्ड, यानी कि हम किस किस प्रकार के बीमारियों को ठीक करते हैं। बेसिकली नेचुरोपैथी के अंदर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि आप अगर नेचुरोपैथी को फॉलो करते हो, योग को फॉलो करते हो, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। और अनलकीली अगर आप बीमार हो गए हैं तो सभी प्रकार की बीमारियों से आप मुक्त हो सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ये बेसिक चीज लिखे हुए है नेचुरोपैथी सेंटर के अंदर। नेचुरोपैथी सेंटर में कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, तो ये सब चीज लिखी हुई है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये बेसिक चीज पूरा सेशन का मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, एडवांटेजेस ऑफ नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी की विशेषता ये है कि इट्स अ नहीं प्लीज प्रीवियस स्लाइड लीजिए प्लीज। हाँ, इट्स अ एंशिएंट ट्रेडिशनल होलिस्टिक एंड साइंटिफिक प्रूव्ड treatment. It's a natural, simple and easy to use. It's not only remove disease but also cure whole body, mind and soul. प्लीज इसको जरा ध्यान से समझिएगा। मैं इसको जल्दी से जा रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ। इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड कैन बी यूज एट होम ऑल्सो। इट्स ऑल्सो सिंपल एंड इजी दैट एनीवन कैन गिव एंड टेक ट्रीटमेंट। इट्स require very less instrument and equipments. It has zero side effect and no reaction by any types of treatment. It's suitable to every age persons from child to aged person. It's suitable to our scientific body and mind, and it's cure disease from root, and it's the base of healthy and happy life forever. सो आई होप कि मेरे सभी इस बात को आपने ठीक से समझा होगा। आखिर में इसी पूरे बात को समझने के लिए एक वीडियो है नेचुरोपैथी को समझने के लिए।
एक वीडियो पहले प्ले किया जाए विशाल जी, Sure, sir. जो नेचुरोपैथी अवेयरनेस का है। प्राकृतिक चिकित्सा Number two, क्या है उसको, second video, sir. हाँ उसमें लिखा होगा नेचुरोपैथी। Visible? यस प्लीज। प्राकृतिक चिकित्सा और इसके फायदे। आज हमारी चिकित्सा प्रणाली बेहद विकसित और कुशल है। बड़ी से बड़ी बीमारियों का दुनिया भर में इलाज संभव होता है, लेकिन कई बार नई चिकित्सा पद्धति के कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी तो ये साइड इफेक्ट जानलेवा भी साबित हो जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चिकित्सा की कौन सी पद्धति सबसे कुशल और कम साइड इफेक्ट से युक्त है? तो इसका जवाब है प्राकृतिक चिकित्सा। क्या है प्राकृतिक चिकित्सा? अगर आप नहीं जानते तो हम बता दें कि प्राकृतिक चिकित्सा रोगों से लड़ने की कुछ बेहद प्राचीन पद्धतियों में से एक है। इसमें औषधियों का अधिक प्रयोग किए बिना उपचार किया जाता है। प्रकृति के पांचों मूल तत्वों का पालन करते हुए ये मनुष्य को रोगों से लड़ने के काबिल बनाती है। आज भारत सरकार इस पद्धति का इस्तेमाल करने पर काफी जोर दे रही है। आयुष मंत्रालय ने देश में कई जगह आयुष सेंटर और प्राकृतिक चिकित्सा के केंद्र खोले हैं। इस चिकित्सा प्रणाली में रोगों के इलाज बोल दिया करे जब आवाज नहीं आता है के लिए पंच तत्वों के साथ सही खान पान और स्वस्थ जीवन शैली का प्रयोग किया जाता है। इस चिकित्सा प्रणाली की चर्चा ऋग्वेद, अथर्ववेद आदि में भी मिलती है। मिट्टी के लेप, मड थेरेपी, जल चिकित्सा, एनेमा, एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर, सूर्य चिकित्सा, व्रत रखकर, संतुलित आहार, डाइट थेरेपी, होम्योपैथिक दवाइयों आदि के माध्यम से प्राकृतिक चिकित्सा में इलाज किया जाता है। अब बात करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा किस सिद्धांत पर काम करती है। दरअसल अगर आप इसके सिद्धांत को समझ जाएंगे तो यकीनन इसके फैन हो जाएंगे। प्राकृतिक चिकित्सा या नेचुरोपैथी का मानना है कि मनुष्य के शरीर में खुद से सभी रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। प्राकृतिक चिकित्सा के 6 मूलभूत सिद्धांत हैं। रोग को दूर करने के दौरान शरीर को हानि न पहुंचे, रोग के साथ रोग के कारण का भी इलाज करना, रोग के इलाज से बेहतर है स्वस्थ जीवन जीने और रोग से बचने की क्षमता को विकसित करना, सभी को एक जैसी दवाई देने की जगह शरीर के अनुसार सभी के लिए अलग अलग चिकित्सा पद्धति अपनाना, रोग के इलाज से ज्यादा ध्यान रोग को फैलने से रोकने पर देना, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। प्राकृतिक चिकित्सा के फायदे क्या हैं? ये अवश्य है कि प्राकृतिक चिकित्सा के केंद्र ढूंढना बेहद मुश्किल है, लेकिन इसके फायदे भी काफी हैं। इसमें शरीर को बिना कोई कष्ट दिए रोगों का इलाज करने का प्रयास किया जाता है। इस चिकित्सा प्रणाली के जरिए न सिर्फ व्यक्ति के रोग का इलाज किया जाता है, बल्कि उसे मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी प्रदान किया जाता है। साइड इफेक्ट का तो इसमें कोई खतरा होता ही नहीं है। इसके इस्तेमाल से यस, सो Yes, sir. इन कंक्लूसिव मैं इतना कहूंगा कि आप सभी को ये पूरा नेचुरोपैथी एंड योग का सेशन पीपीटी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से और कुछ मेरे अनुभव से आप सबको ठीक से समझ में आया होगा और आशा करता हूं कि इसको ठीक से आप याद रखेंगे और अपने जीवन में एक अच्छा बदलाव लाएंगे और आप हमेशा के लिए हेल्दी, हैप्पी रहने का रास्ता मिल गया है, ऐसी मैं आशा रखता हूं। तो आखिर में इतना कहूंगा कि तापी डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज सूरत के मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हेड जो हैं, प्रिंसिपल जो है और जो इसके कोऑर्डिनेटर हैं मिस्टर जेडी रामाणी जी, मिस्टर जेवी सावत जी, मिस्टर एसएस पाटिल जी और विशाल जी वाघाणी जी, ये सभी का मैं खूब खूब धन्यवाद व्यक्त करता हूं
और स्पेशली आप सभी जो पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से, जिन्होंने पूरे ध्यान से मुझे सुना समझा, सबका बहुत ही हृदयपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हरिओम, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सर। But, thank you, Mr. Chintan Trivedi sir, for the session. I hope the session will be helpful to our participants to live their life healthy with body as well as mind. Thank you very much once again, Mr. Chintan Trivedi sir. Thank you, sir. किसी को कुछ क्वेश्चन है? Is anybody has doubt regarding this topic? Kindly please raise your hand or unmute yourself if the host has allowed. हेलो सर। Yes, Mr. Kapil Kumar. हाँ नमस्कार सर। नमस्ते जी। हाँ सर, मुझे जानना था कि जैसे आपने सब चीज़ें बताई हैं तो इसके लिए कोई ऐसी वेबसाइट है जो मतलब जहाँ पे हमें ये इन्फॉर्मेशन और अच्छे से मिल जाए और हम उससे जुड़े रहें? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। मुझे तो खुशी हुई कि आपको ये जानने की उत्सुकता है। सो उसके लिए पहले तो आपको अभिनंदन, क्योंकि इस विषय के लिए जानना बहुत जरूरी है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इस प्रकार का ऑथेंटिक नॉलेज लेना बहुत मुश्किल होगा। जी के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि व्हाट इज नेचुरोपैथी, लेकिन इट इज बेसिकली ऑथेंटिक है या नहीं वो देखना जरूरी है। तो उसके लिए आपको इन्हीं प्रॉपर एक्सपर्ट से कांटेक्ट करके स्टडी करना जरूरी है। तो अभी फिलहाल कोई पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं है इसकी जिससे आपको जानकारी मिल ओके सकती है। लेकिन इफ यू हैव हॉबीज ऑफ बुक रीडिंग, अगर आपको रीडिंग का शौक है तो काफी प्राकृतिक चिकित्सा के संबंधित पुस्तक अवेलेबल हैं। जी सर। तो उसका आप रीडिंग कर सकते हो। सर एक दो किताब आप बता पाएंगे अभी? बुनियादी प्राकृतिक चिकित्सा, ओके ये पुस्तक का नाम है। ओके दूसरा है प्राकृतिक चिकित्सा और उसकी पद्धतियां। ओके तीसरा नाम है कुदरती उपचार। ओके जी, ऐसी सारी पुस्तक के माध्यम से आपको बेसिक नॉलेज नेचुरोपैथी का मिल जाएगा। और इसके कोर्स भी होते हैं, अगर आपको स्टडी करना हो। डिजिटल लर्निंग भी कोर्स होता है इसका, तो आप सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, ये आप कोर्स डिजिटल लर्निंग में कर सकते हो। जी हाँ सर, वही जानना चाह रहे थे कि मतलब जैसे डिजिटल कोर्सेज होते हैं तो वो ऑथेंटिक जी, होते हैं, इसका मतलब हमें पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एग्जैक्ट। उसके लिए कोई वेबसाइट होती होगी या कुछ ऐसा होता होगा कि जहाँ आप की इंफॉर्मेशन हम ऑथेंटिक माने? बिल्कुल आप ऐसा कर लीजिए, आप मेरा नंबर ले लीजिए। जी सर। होस्ट जो है मेरा नंबर आपको मैसेज कर देंगे ओके चैट सर। बॉक्स पर। तो आप ठीक है। मुझे आराम से मुझे कॉल कीजिए और बाकी डिटेल्स जो है मैं आपको पर्सनली कर पाऊंगा। थैंक यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए कपिल जी, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ठीक, नेक्स्ट प्लीज। No, sir, and I have shared Mr. Devi's number in WhatsApp group. So if you have any query regarding this naturopathy, you may direct contact him. Thank you. Okay then, I hope everybody has understood very well, so that there is no more question regarding my topic. So I am very pleased and happy and honored to meet you all, every doctorate person, lecturer, everyone. So I thankful again. So nice of you. I wish God that you all will be more happy, more healthy through your rest of your life. Thank you so much once again. धन्यवाद, नमस्ते, हरि ओम।
You are on unmute, sir. You are on mute, sir. Thank you very much, Mr. Chintan Trivedi, sir. The best part of the session was the audio visual, which you have shown, and I hope that whatever the doubts were there were cleared in the. And the contact number of Mr. Trivedi is mentioned in the WhatsApp group. So if anybody wants to contact him, they are free to contact. Thank you very much again, Mr. Chintan Trivedi, sir. Now, instruction to the participants. Feedback for the session 2 is given in the chat box. So it's a request to all the participants to give the feedback for the session. Now we will meet at 2:30 p.m. for valedictory function. So it's request all the participants to join the session of valedictory before 5 minutes. That's all for the day. Sorry, that's all for the time. Thank you.